secret is out. Nobody was saying me कि yes I will be there. Yes, and I. उनका नहीं हम busy हैं, सब busy हैं. सबसे पहले सबको शुक्रिया. Thank you very much. I'm not Hindu but सिंध में भी तो इस सिंध में है तो। शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. बचट रसर ने लिखा था कि आई एम नॉट ए क्रिश्चियन. पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ बैठी हुई है माशाल्लाह. गुड. हमने बहुत कोशिश की थी. नहीं शक नहीं. मैं मीटिंग का टाइम मांग रहा था डिफरेंट लोगों से. बैठे हुए भी हैं. We will meet ये inshallah. बहाने बना रहे थे. 4:30 तो कुछ ना कुछ बहाना बना. मैंने इनको भी बुलाया 4 बजे. भी 3:30 बजे आ गए. मैंने कहा कुछ गड़बड़ तो लगती है. लेकिन खैर मैं कुछ कहूँ. जी, let me welcome you. योर डे. Yes, I'll be, of course, very brief. Today we are gathered here today with a sense of great joy, celebration, satisfaction, appreciation and pride on Dr. Mohammad Altaf Mukherjee Sahab's 10 years of service at Zabist. And I think that he must feel that it has gone very fast. And yet, I think every day of those 10 years has been a day of dedication, of commitment, of thinking, of constantly looking at Zabist both with the day-to-day eyes of how is academics going every day, every week and every month, but also looking at what else could Zabist be doing? What is the potential of Zabist? How can it improve? How can it develop? How can it expand? And so I'm sure that in his mind are many, many memories that are flooding his mind of the 10 years when he first joined, and we hope to hear from him. But I think for each one of us, Dr. Mukherjee, this is a source of great pride and indeed a matter that, particularly for Zabist, we are honored and privileged that you have led the academic effort in Zabist, which is now, I think, compared to when you started, by leaps and bounds and multifold in many, many ways, significantly developed Zabist into a premier university in every respect. So I think your contribution is enormous and it's extremely valuable and it will continue to be so. And I think on behalf of the Chancellor, who could not be here, but she wanted me to convey to you that, and as you said, the board recognized you in that board meeting. So just with those few words, I think we want to hear from you. And we're very pleased and welcome you back from Dubai, just the right day and the right time. Yes. And let me confess to you that we were trying very hard to do this before you left. Yes. But we debated and debated. We didn't want to have a short notice gathering. And we knew that you were very preoccupied in your preparations for the Dubai visit. So I think the Madam Vice President is not here, Nasreen Haq. Her brother was taken into an emergency operation at about 3 o'clock this morning. So I got a message from her at 5 o'clock saying, please excuse me, I will not be here today. So, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am unable to find the words which should be used at this time, at this occasion. Literally speaking, I am so happy today. सबसे पहले तो मैडम प्रेसिडेंट ये तीसरा सरप्राइज़ है और आई रिमेंबर द डे जिस दिन मेरी फैमिली को बुलाया था उस दिन मेरे पास अल्फाज नहीं थे. घर पहुंचे तो मैंने फैमिली को कहा कि यार आप लोग भी कुछ मुझे बता देते, कुछ मैं अपनी स्पीच प्रिपेयर कर लेता, कुछ था, मगर इट वाज सच ए मेमोरेबल डे इन माय लाइफ. मैडम आपको मैं बहुत अगेन सेकंड सरप्राइज विद थर्ड, आई थिंक आई हैव नो वर्ड्स. थैंक यू. Extremely, exceptional. I'm also extremely thankful to all campuses. Khosrow Saab, Jawad Khosrow Saab, then of course हमारी डॉक्टर साहिबा लाड़काना कैंपस, जायदा अबड़ो,
एंड नौजवान HOC गारो कैंपस, इसके अलावा माय बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर इम्तियाज़ काजी साहब, डॉक्टर में यूज़ कर रहा हूँ ऑनर के लिए, है ना। तो एंड देन ऑफ कोर्स प्लीज़ कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू मैडम नसरीन ऑल्सो। हमारे कुछ अप डाउन रहते हैं, लेकिन काम हम दोनों करते हैं, वो भी काम करती है, मैं भी करता हूँ, तो हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत तो होना भी चाहिए। डॉक्टर हुमायूं नईम, माशाल्लाह डॉक्टर हुमायूं नईम, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। तो इसके अलावा मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर रियाज शेख टू डॉक्टर अकील, डॉक्टर काशिफ अली, महविश, आलिया, डॉक्टर सज्जाद, मैं किस किस का नाम लूँ, एवरीबडी इज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड वॉट एवर वी हैव अचीव्ड, आई एम नथिंग विदाउट देम। आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का सब कुछ था, इसी वजह से ये एक टीम वर्क होता है, और इसीलिए वी यूज्ड टू से वी आर ज़ेबिस्ट फैमिली। तो I think we have a proud on it. We definitely, I mean, we don't have any such environment anywhere else. मैंने वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, कराची की कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मेरी प्रेजेंस ना हुई, वो मे बी एज अ विजिटिंग और ए फुल टाइम, बट ज़ेबिस्ट इज़ समथिंग एल्स, डेफिनेटली समथिंग एल्स। I can also like to disclose that few universities approached to me during this period कि वो हम आपको VC-शिप ऑफ़र करते हैं, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा नो, आई एम हियर एंड आई विल रिमेन हियर, बस दिस इज़ माई लास्ट जॉब। ये फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ द वॉइस फ्रॉम माई हार्ट। तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैंने एक चीज़ को ग्रो किया, तो मैं ऑल ऑफ ए सडन सीन से क्यों चला जाऊँ। मुझे खुशी होगी कि मैं और इसको ग्रो करूँ, मेरे लोग उसमें प्रमोट हों, मेरे लोग उसमें आगे आएँ। तो दिस इज़ रियली अ वंडरफुल डे फॉर मी। लोग न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, मगर मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, साइंस ने भी कहीं कहीं प्रूव कर दिया है कि नंबर्स का अपना एक होता है। तो लकी नंबर 7 कहलाता है नॉर्मली। अब 7 जिसको रास आ जाए वो तो बहुत रास आता है, 7 जिसके अगेंस्ट चला जाए तो बहुत नुकसान होता है। तो इनफैक्ट ज़ेबिस्ट इज़ माई 7th जॉब, 7 जॉब, तो ये मुझे रास आ गई। फर्स्ट जॉब मेरी थी MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, कंप्यूटर डिवीज़न। सेकंड मेरी जॉब थी IBM पाकिस्तान। थर्ड मेरी जॉब थी सिल्वरिड इंटरनेशनल। फोर्थ थी सुपारको। फिफ्थ थी हमदर्द यूनिवर्सिटी। सिक्स थी बहरिया यूनिवर्सिटी, और सेवन्थ ज़ेबिस्ट। सो आई थिंक ज़ेबिस्ट इज़ अ वंडरफुल प्लेस, और मुझे खुशी ये है कि एटलीस्ट जो मेरे लोग हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मैं हमेशा उनके लिए सोचता रहता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है। मेरी पहली मीटिंग जब हुई थी बिलावल हाउस में, जो मैडम बख्तावर को मैं फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन दे रहा था आफ्टर बीइंग द VP, तो पहले ही दिन मैंने स्लाइड्स में मैंने कहा कि मैं यहाँ पे डीन लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं यहाँ पे डीन्स को देखना चाहता हूँ, बिकॉज देयर वाज ओनली वन डीन एट दैट टाइम। आई वाज अपॉइंटेड एज अ डीन, बट आफ्टर दैट आई बिकेम द VP, एंड बिफोर मी डॉक्टर जलवानी वाज डीन ऑफ मैनेजमेंट साइंस। तो मैंने कहा डीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जहन में थी कि रजिस्ट्रार भी ज़ेबिस्ट में नहीं है, कि पूरी दुनिया में हर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार होता है। तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता इसको फिलअप करेंगे, पहली मीटिंग में इतनी सारी डिमांड नहीं करनी चाहिए कि फिर वो बख्तावर या मैडम चांसलर कहेंगे यार तो पहले से ही डिमांड शुरू कर दी इन्होंने। तो पहली प्रेजेंटेशन में व्हाट आई डिड के आई सेड के आई वांट टू कंबाइन द टू डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन एंड सोशल साइंस, आई वांट टू मेक माई brilliant faculty member Dr. Riaz to be the dean of that faculty. So she approved very immediately. और मुझे बड़ी खुशी हुई, I got motivation कि yes my voice is heard, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद फिर सेकंड आया डॉक्टर काशिफ अली का टाइम। डॉक्टर काशिफ अली मुझसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आई एम फेड अप विद द नेम बायोसाइंसेज, HOD बायोसाइंसेज, प्रोग्राम मैनेजर बायोसाइंसेज, डिपार्टमेंट बायोसाइंसेज, प्लीज़ चेंज द नेम। मैंने कहा यार मुझे मेरे जहन में एक विजन है, एक साल आप वेट कर लें। सो व्हेन ही ब्रॉट द प्रपोजल ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो मैंने कहा नाउ यू विल बिकम द डीन, एंड डीन ऑफ नॉट बायोसाइंसेज, डीन ऑफ लाइफ साइंसेज, बिकॉज इन पब्लिक हेल्थ along with bioscience, biotechnology, that justify the name of life sciences. तो सारा डॉक्टर काशिफ अली के लिए एक रास्ता खुल गया। फिर मैनेजमेंट साइंस में वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि मैनेजमेंट साइंस के डीन को स्टेबिलिटी दें डिपार्टमेंट को। वी ट्राइड टू पीपल, लेकिन वी वर नॉट सक्सेसफुल।
सो वी थॉट के विद इन द डिपार्टमेंट होना चाहिए डीन। तो फिर सारा फोकस जो है वो डॉक्टर मोहम्मद काशिफ पे आ जाता था। तो डेफिनेटली ही डिज़र्व्ड इट, और अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस एंड मेरिट मैंने कोई ज़्यादा एहसान नहीं किया। ही वॉज डिज़र्विंग दिस केस, देन आई डिस्कस विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की खूबी है कि हर वक्त वो पॉजिटिव होती हैं, चाहे वो थोड़ी देर बहस करने के बाद पॉजिटिव हो जाती हैं या फिर लेकिन वो मेरी बात को बड़ा ऑनर करती हैं मैडम, और आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैडम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लाइक मैडम चांसलर ऑल्सो। एक चीज़ थी मेरे में जो आई थिंक आई शुड एक्सप्रेस हियर, कि मेरी नीयत साफ थी। मैं जब दिल से आदमी काम करता है तो आई बिलीव ऑन अल्लाह में, मगर एक फेथ है मेरा कि व्हेन यू वर्क सिंसियरली फॉर सम प्लेस एट सम डिपार्टमेंट, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यू नो, इट्स ऑलवेज अल्लाह's ग्रेस एंड हिज मर्सी। सबसे ज़्यादा जो परेशान था मैं, लिटरली स्पीकिंग, वो था घारो कैंपस के लिए। क्योंकि घारो कैंपस को हमने एक्सेप्ट तो कर लिया मैडम चांसलर को कि जी उसको हम पॉपुलेट करेंगे, मगर मेरे पास कोई सच डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से पॉपुलेट करूँगा उस जंगल में जहाँ पर कि लोग जा नहीं सकते। और हमने कमिटमेंट तो दी कि जी हम इतना बड़ा कैंपस बनाएंगे, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। उसके बाद फिर हमने आइडिया चेंज किया कोविड के बाद, हमने कहा नहीं हम उसको कैंपस बनाएंगे घरों का। मैं बड़ा परेशान था। तो वन फाइन डे विजय साहब मेरे ऑफिस में आए, मुझे नहीं पता क्यों आए। ये BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम मैनेजर थे। तो आते ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आई वांट टू गिव वन प्रपोजल। मैंने कहा बताएं। आई वांट टू बिकम द HOC घारो। मैंने कहा हाउ यू कैन बिकम, प्रूव मी कि यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। बोला मैंने 15 साल वहाँ पर एक बैंक ब्रांच चलाई थी और मैंने कहाँ से कहाँ डिपॉजिट ले गया था, और आई नो द पीपल सराउंडेड बाई दिस घारो एरिया। तो मैंने कहा वेल, फिर मैडम से मैंने बात की, मैडम वॉज ऑल्सो सरप्राइज। फिर हमने बिल्कुल कहा कि नहीं, विजय लुक्स टू बी द राइट पर्सन। तो आज विजय आपके सामने है। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? 300। सिमिलरली आई थिंक मीडिया साइंस डिपार्टमेंट बहुत सफ़र कर रहा था। वी हैड सीन 3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, श्रीराम और कौन कौन से थे, चलें 2 और थे, नहीं हैं, तैमूर सूरी होते हैं, नहीं अच्छे थे, दो पीपल वर वेरी नाइस, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली दे वर लिटिल पुअर। सो मीडिया साइंस डिपार्टमेंट वॉज सफरिंग। तो हमें ये नज़र आ गई। हमने कहा आपको तो बनना है। सर मैं PhD कर रही हूँ मलेशिया से, मैं तो टाइम नहीं दे सकती। मैंने कहा टाइम तो देना होगा यूनिवर्सिटी के लिए, आपको हम अलाउ कर देंगे जब मलेशिया जाना हो आपको तो। सो शी कोऑपरेटेड। आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि मलेशिया जाने से ज़्यादा उन्होंने प्रेफर ये किया कि मैं अपने डिपार्टमेंट को बनाऊँ। एंड मीडिया साइंस में जो भी आज वाइब्रेंट नज़र आता है, ये एक्टिविटीज़ हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ महविश। इस तरह कहानी चलती रही। मैं अभी फ़िलहाल एकेडमिक साइड पे हूँ, फिर नॉन एकेडमिक साइड पे भी आता हूँ, हैं। तो आलिया ज़रा गौर से देख रही है ना मुझे। तो उसके बाद फिर देयर वाज अ डिमांड इन मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट कि देयर आर 7, 8, 9 प्रोग्राम मैनेजर एक टाइम पे थे। एंड द डिपार्टमेंट वाज सच ए ह्यूज, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फ्रॉम मैनेजमेंट साइंस। मैं तो उन्हें चाइना की फौज कहता हूँ, हैं। तो वो इतने बड़े डिपार्टमेंट थे। मैंने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक HOD उसको हैंडल करें। So then we thought, after a lot of deliberations, and of course in all my discussion Madam President was here and she was supporting me, तो हमने कहा कि ये 2 HOD बनाने हैं। अब दूसरे HOD किसको बनाए? एक तो HOD थे, दूसरा किसको बनाए? अच्छा जी वो वजिया को बनाते हैं जी, वजिया तो PhD नहीं है। तो मैंने कहा कि NBAC से पूछ लेते हैं, अगर उनको कोई एतराज़ नहीं तो वजिया को बनाते हैं, बट बिकॉज शी डिज़र्व इट, बहुत पुरानी है यहाँ पर। तो NBAC ने कहा वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप बनाएं जो भी आप सूट करते हैं। So then we made Majia as a HOD undergraduate programs, and I think she is wonderfully doing. I mean, और मैं ओवरऑल एफिशिएंसी देखता हूँ तो मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग मोर वाइब्रेंटली एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन. सो दैट इज़ वाई वजिया इज सिटिंग एज एन HOD हेयर. फिर उसके बाद डॉक्टर सज्जाद ने अप्लाई किया था जॉब के लिए. पहले ही वॉज वर्किंग एट हमदर्द यूनिवर्सिटी. तो मेरी और डॉक्टर इमरान की बड़ी बातचीत होती थी. वो बातचीत मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा. लेकिन हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस थे
क्योंकि फिर हमने, क्योंकि हमदर्द में जब आप थे तो मैं भी हमदर्द में रह चुका था, तो मेरे भी वहाँ कुछ दोस्त थे, वो थोड़ी थोड़ी मुखबरियाँ करते थे मुझसे, वो मैं होना भी चाहिए. सो व्हेन फाइनली ड्यूरिंग दिस कोविड, जब डॉक्टर साहब हमदर्द यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और आपके चूँकि चांसलर हेल्थ मिनिस्टर हैं तो परहैप्स शी मे लाइक इट. तो इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया था कि बाय लुकिंग एट द एक्सरे ऑफ इंडिविजुअल पता चल सकता है कि ये कोविड-19 उसको है कि नहीं है, रादर देन टेकिंग द स्वाब एंड एवरीथिंग. तो वो मैंने भेजा मैडम चांसलर को सारे एक्सरेज के साथ, रिजल्ट्स के साथ. आई रियली अप्रिशिएटेड. कुछ मैंने एक्सरे डेलिबरेटली दिए जो कि मुझे पता था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. इन्होंने डायग्नोस किया, इनके एल्गोरिदम ने. मैडम चांसलर को मैंने भेजा. मैडम चांसलर उस वक्त शायद थोड़ी सी बिजी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको हम बाद में देख लेंगे. मगर चांसलर साहिबा ने ये रिप्लाई किया कि ये जो कोविड-19 है ये अपर रेस्पिरेटरी का होता है और इनका जो एक्सरे ये लोअर रेस्पिरेटरी को एड्रेस कर रहा है. लेकिन बाद में जब जापान ने और दूसरे मुल्कों ने ये सिस्टम बनाया तो देन भी वो कब कि नहीं हमें भी करना चाहिए था. तो बहरहाल वो स्टोरी चली गई. बट ड्यूरिंग दैट होल कन्वर्सेशन आई फाउंड हिम, यार ही इज़ द पर्सन फॉर ज़ैबिस्ट. ये हमदर्द में क्या कर रहा है मुझे नहीं पता. सो मैंने फिर उनसे कहा कि आप अप्लाई करें, इधर आए. I need to open a department of robotics and artificial intelligence and you will be heading the department. यही बात हुई थी आपसे. So then हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद बैठे हुए हैं. So what I thought, I mean अल्लाह ने उसको आसान कर दिया जो मेरे विजन था. उसके बाद बहुत सारी और डेवलपमेंट्स थी. एग्जामिनेशंस में आप आएँ तो एग्जामिनेशन में देयर वाज नो प्रोसेस, देयर वाज सिंपल प्रोसेस कि जी एग्ज़ाम होना है, रिज़ल्ट आना है और रिज़ल्ट डिस्प्ले करना है. नो, मैंने कहा जी एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो ही और शी शुड हैव अ राइट टू कहे कि जी मेरी कॉपी चेक करें, मैं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड. तो फिर हमने शुरू किया सिस्टम, स्क्रूटनी का सिस्टम शुरू किया. सो वी गेव एवरी पॉसिबल चांस टू स्टूडेंट सो दैट दे आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. हम ये रिज़ल्ट को इम्पोज नहीं करना चाह रहे थे. हमने कहा रिज़ल्ट आना चाहिए, स्टूडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए. सो वी मेड श्योर कि एटलीस्ट यस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर आवर प्रोडक्ट्स, दीज आर आवर कस्टमर्स, उनको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. तो वो सिस्टम वहाँ पर अच्छा चला. फिर उसके बाद बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आलिया ने खुद की हैं, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा. आलिया ने खुद की हैं बहुत सारे SOP बहुत सारी बताई. जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने एडवाइस की, बाकी एवरीथिंग वाज डन बाय हर. और फिर डिपार्टमेंट इतने बड़े हो गए. रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इटसेल्फ इतना ह्यूज हो गया. और रिकॉर्ड डिपार्टमेंट तो मैं आयशा को हमेशा कहता हूँ कि बायोनिक आइज़ हैं उनकी. इतनी छोटी छोटी माइनर चीज़ को भी वो पकड़ लेती हैं. आई डोंट नो, अल्लाह ने इनको बड़ा वो एक क्या दिया है, हिस्स दी हुई है, कुव्वत हिस्स, छठी हिस्स दी हुई है. सो आई हैव नेवर गॉट एनी प्रॉब्लम, एनी कंप्लेंट. ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो डिग्री में कहीं गलत हो और मुझे किसी ने रिपोर्ट किया हो. और जो बाहर से जो डिग्री जो फेक टाइप की होती हैं फ़ौरन ये क्विकली पकड़ लेती हैं कि ये फेक है. एक डिग्री मुझे याद है जिस पे मैडम अजरा के साइन थे और मैंने उनको BOT मीटिंग में दिखाया, मैडम अजरा, मैडम ये आपके ये फेक डिग्री है आपके. नो, दिस इज़ माई सिग्नेचर. मैंने कहा नो, दिस इज़ नॉट योर सिग्नेचर, ये आपकी साइन किसी ने डुप्लीकेट की. ये रिमेंबर मीटिंग में. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ आइज़, बायोनिक आइज़, उसने बड़ा काम किया. फिर उसके बाद QR कोड हमारा लेटेस्ट है. इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय HEC इवन. और वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था. डॉक्टर अकील ने वो सारा काम संभाला और आई एम थिंकफुल डॉक्टर अकील ऑल्सो के एग्जामिनेशंस और रिकॉर्ड्स ये बहुत, यानी मैं ना भी हूँ तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टुडे व्हेन आई जॉइन बैक आफ्टर ए वीक, तो मैंने पहला सवाल पूछा कि एग्जामिनेशंस का लास्ट वीक में जो थे कैसे हुआ, सही हो गया सब कुछ. तो वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है. यस, योर पीपल आर प्रोफेशनल, योर पीपल आर वर्किंग विदाउट एनी सुपर गाइडेंस तो होती है मगर एक सुपर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम थैंकफुल टू अकील, आलिया एंड आयशा कि दे हैव कंडक्टेड द एग्जाम्स. मुझे आसिफ काजी को देख के एक बात याद आई. आसिफ काजी साहब 2013 में जब मैं आया था तो वो नहीं थे, वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में थे. और यहाँ पर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आते थे तो एवरीबडी वाज कॉलिंग काजी साहब. तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये काजी साहब कौन है आखिर. तो मैंने फिर नंबर लिया शायद अब्बासी साहब से या किसी और से. मैंने कहा आई वांट टू टॉक टू काजी साहब.
पूरा नाम क्या है उनका? बोला आसिफ काजी। मैंने कहा आसिफ काजी। मैं आ रही हूँ आसिफ काजी अल्लामा इकबाल में थे। मैंने कहा यस। मैंने कहा यार आप जैबिस छोड़ के क्यों गए थे? तो उन्होंने कोई रीज़न बताया। मैंने कहा अभी आप सेटिस्फाई है इस्लामाबाद में? कहता नहीं वापस आना है। मैंने कहा आ जाओ मेरे से मुलाकात करो। तो उस वक्त मैंने कहा यार जब सारे लोग आपको याद करते हैं तो क्या आपके अंदर खूबी है? तो फिर काजी साहब ने कुछ चीज़ें बताई मुझे। तो भाई इस तरह से काजी साहब भी दोबारा सिस्टम में आ गए। और काजी साहब को पहले दिन जब आए थे तो मैंने एक एडवाइस की थी जिस पे आज तक उन्होंने अमल नहीं किया। वो था कि स्मोकिंग आप छोड़ दें। तो ये स्मोकिंग अभी तक कर रहे हैं। ये मेरी बात उन्होंने नहीं मानी, अभी तक कर रहे हैं स्मोकिंग। तो इस तरह चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद एक ऑरिक का इनिशिएटिव हमने लिया था। ऑरिक जो था वो डेफिनेटली एचईसी की रिक्वायरमेंट थी एंड वी हैड टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। तो अभी भी मैं ऑरिक को बहुत देखता हूँ, अभी इन्फेंसी में है। अभी ऑरिक उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। बट आई विश एंड प्रे, मैडम ने भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि ऑरिक को हमने वाइब्रेंट करना है एंड वी आर डूइंग एंड वर्किंग ऑन इट। एक आदमी जो बहुत डेडिकेटेड है उसका नाम लेना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत डेडिकेटेड है, अपने काम पे फोकस है, वो है फ़तेह बरोही साहब। एक्सेलेंट काम। एचईसी के जो लेटर हैं उनको आप दे दें, आपको फ़िक्र नहीं है, वो बस अपना काम करते रहेंगे। आज भी सुबह मैंने इनसे मीटिंग की, सीआईसी का विज़िट है, आपको बता दूं सीआईसी का विज़िट है। इन्होंने मुझे सारी प्रिपरेशन बताई। तो मैंने आज उनको कहा कि भाई 3 लाख का चेक है वो फ़ौरन पहुँचाएँ, उनसे प्रोग्राम लें आप। और उन्होंने 40 डिब्बे मांगे हैं फ़ोटो कॉपी के। मैंने कहा 40 तो हम नहीं देंगे आपको, हम अपलोड कर देंगे सॉफ्ट कॉपीज़, 1 डिब्बा दे देंगे आपको। लुक एट द रिक्वायरमेंट, 40 डिब्बे फ़ोटो कॉपी करा के दें उनको, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आज मेरे ख्याल कल जाएंगे आप फ़तेह बरोही साहब। फिर उसके बाद द सिस्टम जो है एडमिशन्स का हमारा, एडमिशन्स के अंदर एडमिशन की एक्टिविटी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मार्केटिंग है। क्योंकि मार्केटिंग जब था, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग। इफ़ यू डू नॉट मार्केट इट राइटली तो मार्केटिंग के बगैर कुछ भी नहीं है आजकल। आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट करना होता है। तो मार्केटिंग में नबील साहब के तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में उन्होंने बड़े नए रिकॉर्ड्स बना के दिए हैं हमें। और वो हर दिन मुझे वो व्हाट्सएप करते थे कि आज इतने क्लिक्स हुए, कल इतने क्लिक्स हुए थे। और वो क्लिक्स थाउजेंड्स में और मिलियंस में होते थे। तो दिस इज़ सर्टेनली इनका कमाल था। तो मैं तो सिर्फ गाइडलाइन देता था, बाकी तो मेहनत आप लोगों ने की हुई है। मैं तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। हमारी जो नताशा हैं, इन्होंने ये तो हमारी वो है ना, क्या नाम है, इंसाइक्लोपीडिया। इन्हें हेड ऑफिस से भी फ़ोन आते हैं तो नताशा से पूछते हैं कि फ़लाँ डेट को वो चीज़ कब हुई थी, क्या हुई थी। शी हैज़ द कॉपी, लिटरली स्पीकिंग। And I think she is the most senior person sitting here. Natasha, how many years you have spent here? 26 years. पता है आप, पूरी लाइफ ऑलमोस्ट गुजारती उन्होंने। बट शी इज़ डेडिकेटेडली वर्किंग। मेरे सारे शेड्यूल वो बनाती हैं, मुझे शाम को जाने के पहले भी इन्फॉर्म करती हैं कि आपकी फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे मीटिंग है, फ़लाँ दिन। आई एम रियली थैंकफुल टू हर। तो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज तो यही आती है ना, रोज़ाना 2-3 मुलाकात होती है उनसे। बट शी इज़ अ रियली शी नोज़ हर जॉब वेरी वेल। एनुअल रिपोर्ट बनानी है, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट शी प्रिपेयर्स, आई जस्ट ओवरलुक इट, ओवरसी इट कि जी इसके ऊपर क्या है, कोई तस्वीर यहाँ लगा दो, कोई तस्वीर वहाँ लगा दो, दैट्स इट। बट सारा काम ये करती हैं। प्रोक्योरमेंट की बात आती है, समीना इज़ ऑलवेज कोऑपरेटिंग। और समीना ने अभी जो लेटेस्ट मुझे जो मेरा काम किया, मुझे गाड़ी अच्छी वाली ला के दी है उन्होंने। हाँ फाइनली मुझे वो कागजात अभी नहीं है मिले, लेकिन मैं अगर कोई पकड़ेगा तो मैं आपका नाम ले लूँगा है। तो लाइब्रेरियन में भी अल्लाह का शुक्र है, इजहार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल ही नीड्स टू इम्प्रूव। अभी हमारी ग्रेजुएट लाइब्रेरी है, उसमें हमने देखना है कि व्हाट यू आर इजहार। आपकी ईमेल्स बहुत लंबी होती हैं, हम थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें टाइम नहीं मिलता यार। बाकी रहा स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और इंटर्नशिप्स एंड दिस एंड दैट। तो हाजरा मैडम हाजरा पूरी लिस्ट लेके आती हैं। मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन सी कंपनी से क्या क्या चीज़ खाने खाए हैं उन्होंने, लेकिन एवरी कंपनी उनके लिए बड़ी प्रेशियस होती है। कॉन्टेक्ट तो मुझे फिर अल्टीमेटली मैं अप्रूव करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो काम इधर है जिसका कि मैं कहता हूँ कि ये काम
सामने नज़र नहीं आता, मगर वो काम अगर निकाल दें, माइनस कर दें, तो हम पता नहीं कितने प्रॉब्लम में आ जाएं। वो है मंसूरा का डिपार्टमेंट। एक्सेलेंट मंसूरा, आपके लिए तो मैं तालियां बजाऊंगा। मंसूरा का ये है, दो काम है, एक हाई एंड का जॉब है, एक लो एंड का है, और वो डेफिनेटली दोनों काम बड़े। अब तो जो फाइल भेजती है मंसूरा लास्ट फॉर द 2-3 years MS PhD के, वो बड़े स्टिकर लगा के, और एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कोई भी चीज़ ढूंढनी होती है तो इट डजंट टेक एनी टाइम, आई फाइल इट वेरी 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 इजीली। और फिर उस पर मुझे लिखना भी पड़ता है तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। हर फाइल पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती है मेरी तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि आखिरी जो हमारा डिसीजन था, बिल्कुल था कि जी मैंने 10 साल पूरे कर लिए हैं। डॉक्टर मोहम्मद नईम से हमारा अभी लेटेस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। पहले फातिमा डार थी, और फिर ये हमारी जो है नजमुनिसा। तो आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरा कम है, लेकिन माशाल्लाह आपका जॉब भी जो है वो आई नो इट। हाँ, लॉ को मैं कैसे भूल जाऊँ, कहाँ है राफिया? आपको तो अभी आना है मेरे पास। आज हमने आपकी सैलरी वैली पे कुछ डिस्कस किया, आपको आना है मेरे पास। हाँ हाँ, राफिया इज़ वंडरफुल। राफिया और जॉन को मैं क्रेडिट इस तरह दूंगा, मैं सबके सामने ओपन है, ओपन, इट्स ओपन टू एवरीबडी। लास्ट टू लास्ट ईयर 21 की बात है, 3 people और 4 people सीनियर पीपल ऑफ RTC ऑल ऑफ ए सडन देखे कि हम नहीं आएंगे कल से। ठीक है, हमारे लिए तो एक प्रॉब्लम था ना BN एकेडमिशन के, हमारा तो डिपार्टमेंट चलाना है। सो राफिया, जॉन, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, एंड वेरी वेल रेस्क्यूड, आई रियली अप्रिशिएट। और सबसे बड़ा जो मेरे पास एक चेक था वो ये था कि आफ्टर देयर अराइवल हियर, दे आर वर्किंग हियर फॉर मोर देन 2 years नाउ, 2 years तो हो गए इनको, कि एक तो हमारा इवनिंग को ख़त्म करके आफ्टरनून सेशन, दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल। और उसके बाद मेरे पास डेटा आया कि जी रिटेंशन हमारा बेहतर हुआ है। पहले ये होता था कि 100 स्टूडेंट्स एडमिट हुए और सेकेंड ईयर में 20, 23, 24 इस तरह रह जाते थे, तो एकदम ड्रॉप आ जाता था। अब ये लाइन ड्रॉप की बजाय थोड़ी सी स्टेबल हुई है कि पीपल आर नाउ रिटेनिंग विद अस, एंड दैट इज़ अगेन द क्रेडिट गोज टू राफिया एंड जॉन, दे आर वर्किंग वेरी वेल। तो ये जो 30 hours हैं उसको बढ़ाने होंगे, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, वी नीड मोर टाइम्स, है ना, मोर टाइम। हाँ, खालिद साहब किधर हैं यार? खालिद साहब नाराज़ तो हैं, लेकिन कोई बात नहीं। खालिद साहब, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, क्योंकि HR के काम मेरे बहुत पड़ते हैं तो नहीं खालिद का हाथ तो कहाँ नज़र आ रहा है भाई, माफ़ कर देना मुझे कोई गलती हुई तो यार। मेरा जो लास्ट डिसीजन था, जिसमें आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि जी 10 साल मुझे हो गए थे डीन प्लस VP, मैंने कहा नहीं, अब किसी और को डीन आना चाहिए। फिर डॉक्टर इमरान को मैंने कहा कि ही इज़ द अप्रोप्रिएट पर्सन, ही शुड कैरी आउट द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज एवरीबडी शुड कम अप लाइक दिस, हमें तो चले जाना है कोई एक लेवल पे आके, फिर ख़त्म। अब इन दिस एज मेरे तो बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते थे घर बैठे हुए हैं, रिटायर्ड बैठे हुए हैं, सारा दिन व्हाट्सएप करते रहते हैं, और मुझे कहते हैं आपका जवाब नहीं आता। मैंने कहा मैं अभी जॉब पे लगा हुआ हूँ। तो रिटायर्ड लाइफ का अपना एक होता होगा, चार्म होता होगा, बट आई डोंट थिंक रिटायर्ड लाइफ मेरे लिए तो बड़ी पेनफुल होगी जब कोई काम ही करने का नहीं हो। तो हाँ, मेरे वो ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ मैं खेल सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो आई डोंट थिंक वन शुड रिटायर। If unless you are physically fit to perform any duty, you should continue to work. ठीक है ना? डॉक्टर फराज कहाँ है? आप मुझे ऊपर बनाने आए थे। डॉक्टर फराज माशाल्लाह, ये भी मैं तो जब डीन था तो ये डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करते थे। फराज जुनेजो इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। फराज जुनेजो इज़ द वन जिसने कि OBE सिस्टम को इतना क्विकली ग्रास्प किया है कि I have the record, I have received the record from HEC, Pakistan Engineering Council. He is among the top 3-4 specialized people on OBE system. इसलिए डॉक्टर फराज को तकरीबन साल में 2-3 मरतबा विजिट की कॉल आती है। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? माशाल्लाह, ही हैज़ ग्रैब्ड OBE सिस्टम वेरी वेरी वेल। इट इज़ नॉट ईजी। मैं जब अपनी विजिट पे जाता हूँ तो इनसे पहले सीख के जाता हूँ मैं, लिटरली। अभी एयर यूनिवर्सिटी गया था और मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी, वो इनके कहने पे दी थी मैंने, इन्होंने ऑब्जर्व किया था उसको। हाँ, नादिया किधर है? नादिया, थैंक यू नादिया।
आपका काम अगेन नज़र नहीं आता कि आप और ये जो है ना आपके स्टूडेंट सोसाइटी हरीम का है, हरीम नहीं है ये। हरीम आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना ये स्टूडेंट के साथ ज़्यादा होती हैं, फैकल्टी के साथ हमारे साथ कम होती हैं, बट डिस्पाइट दैट वी सी द स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। आज ही कुछ वो साइन होने के लिए हरीम से आया था मैं, तो आई थॉट के कुछ एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं, बट आई थिंक ओवरऑल नादिया आपका जो थोड़ा सा गैप आ गया था उसकी वजह से थोड़ा से हमें प्रॉब्लम भी हुए थे, बट नाउ शी इज़ फाइन एंड आई थिंक दैट यू आर एज गुड एज अर्लियर। और डोंट वरी, आपका वो जो एक आपकी जो क्या नाम है एक रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। मैं अभी बता नहीं चाह रहा हूँ क्या। वेयर इज़ तौसीफ? तौसीफ को अगर मैं नहीं बात करी तो अगले महीने टैक्स ज़्यादा काटेगा वो। यार तौसीफ आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, आप असल में चेंज होते रहते ना, कभी दाढ़ी देखें जेबिस्ट में वाहिद आप हैं जिनके मैंने 4 डिफरेंट शेप देखे हैं। एक क्लीन शेव्ड, एक में पोनी बांधे हुए, पोनी बांधी थी, एक में सिर्फ आपकी मूछें थी, एक में दाढ़ी के साथ मूछें, 4 शेप हैं आपके यार। तो आई एम सॉरी। तौसीफ इज़ वंडरफुल। और मैं इसको याद है, तौसीफ आपको याद है, मैं आपको इसाक डार कहता हूँ, जबकि उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, आप नहीं करना यार। मैंने इनको कहता था, मैं फाइनेंस मिनिस्टर कहता था, ये मैं फाइनेंस मिनिस्टर। और प्लीज़ कन्वे टू बशीर साहब, किधर हैं बशीर भाई? वेरी नाइस। मेरा ख्याल है कि मेरे मेमोरीज़ के जितने फ़ोटो आपके पास हैं और किसी के पास नहीं है, बहुत सारे तो मुझे आपने दिखाए भी नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आपने को मैंने गलती से डांट दिया था, उसके लिए माफ़ी है, ठीक है। बाकी सारे स्टाफ तो मुझे जानता है। और एक बात मैडम, आप मैडम नसरीन को कन्वे करें कि जी मेरे लिए बड़े अच्छे रिगार्ड्स हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी वो थोड़ा प्लस माइनस हो जाए, मगर आई रियलाइज़ कि वट एवर द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, मैडम नसरीन का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, एंड वी शुड रियलाइज़ इट। एंड अगेन काजी साहब, वो उनके साथ तो बना के रखनी है हमने, क्योंकि काजी साहब के पास इतने केसेस HR के हमारे जाते हैं, वो आज सब अप्रूव करा लें, हाँ सब अप्रूव। सो ओवरऑल आई थिंक आई एम थैंकफुल टू अल्लाह आफ्टर दैट यू ऑल पीपल आर सो क्लोज टू मी, क्लोज टू माई हार्ट, कि दीज आर द मेमोरी ऑफ माई लाइफ। और अगेन मैं प्रेसिडेंट को कहूँगा कि अब इसके बाद कोई सरप्राइज़ मत दीजिएगा। मुझे टबा में जाना पड़ेगा। अच्छा, नाउ कमिंग टू द ऑन कैंपस, ऑल कैंपसेस, स्टार्टिंग विथ खुसरो परवेज साहब, a great personality, a great administrator, and now since last event when he had given the की स्पीच नोट की एज ए की स्पीकर, उसके बाद तो ये अब ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, अब ये एक एडमिशन बन गए हैं। सो खुसरो साहब, मैनी थैंक्स टू यू एंड योर एंटायर टीम। आई नो के माय प्लेजर, थैंकफुल। आप अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले यहाँ आए थे, तो मैं यहाँ पे नहीं था, वरना आपसे मेरी मुलाकात हो जाती। और हाँ, ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद के लिए भी एक हमने इनिशिएटिव लिया था कि वी थॉट के ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद कैंपस इज़ नाउ वेरी मच ग्रोन और हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट बॉडी एंड द टीचर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी बॉडीज़ रिक्वायरमेंट कि वी नीड टू वाइस associate deans there. So I'm thankful. Dr. Asif is the Associate Dean of Management Science, and Dr. Usman is the Associate Dean of Computer Science. And mashallah, both are very good, very senior people, both are professors. And I hope that along with the passage of time, they will definitely deliver us more. And like we are thinking to build one campus more in Islamabad, तो आप लोग ही होंगे जो उसको लीड करेंगे। बट ओवरऑल जब भी मैं इस्लामाबाद गया हूँ तो मुझे एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स मिली हैं, और ऑल द पीपल लव, आई मीन मुझे इतना अच्छा मुझे नज़र आया उधर कि एक वो फ्रेंडशिप का जो कल्चर है जो कराची में एग्जैक्टली मुझे इस्लामाबाद में भी नज़र आया।
और ख़ास तौर पे जब खुसरो साहब जब गार्डन में रिसीव करते हैं और सबसे पहले ताज़ा ताज़ा वो फ्रूट खिलाते हैं तोड़ के, वो दैट इज़ एक्सेप्शनली वेल, मज़ा आता है। वो मैंने पता नहीं क्या क्या फ्रूट खिलाए खुसरो साहब ने, मगर एक्सेलेंटली उन्होंने जो मेंटेन किया है गार्डन को और बाकी चीज़ों को, मेरा ख्याल है एक हॉर्टिकल्चरिस्ट ही कर सकता है उसको, along with the administration. So खुसरो साहब, all credits to you and your faculty and your staff. उसके बाद Indeed, sir. We are really indebted and we always look forward for your leadership and guidance there. And Alhamdulillah, let me, sir, say, I'm sorry I'm interjecting, but each one of us, we look forward for your visit also, and the way you provided the leadership, not only in the academic arena, but otherwise also, administratively also, we all appreciate that. And it's because of that that you gave us that face that we could think good things and we could implement good things. So I'll take this opportunity to thank you, sir, on this auspicious occasion. And from all of us, we feel indebted. Thank you very much, sir. God bless you. सो नाइस ऑफ यू खुसरो साहब, ये आपकी मोहब्बत है। सेकंड, आई वुड लाइक जवाद खुसरो साहब, हैदराबाद। जवाद साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये आई हैव नॉट सीन इन सो मेनी पीपल, बट द ऑर्गेनाइजेशन स्किल ऑफ जवाद खुसरो साहब इज़ एक्सेलेंट। चाहे वो कन्वोकेशन को ऑर्गेनाइज करना हो या विद इन द कैंपस कोई एक्टिविटी को उन्होंने करना हो, Jawad Khosrow Sahab is always very prompt, and there are occasions when I need to have several questions in mind, but वो पहले से ही वो लिख के जवाब दे देते हैं, तो मुझे कुछ सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जवाद खोसरो साहब, full credit to you that your Hyderabad campus and especially the figures tell us कि आपके कैंपस कितना ऊपर राइज पे जा रहा है माशाल्लाह, and we are very hopeful and we are very much appreciated. I mean, जो प्रोग्राम आप ले लें, आप स्टार्ट करते हैं, आपने ज़ीरो सेमेस्टर स्टार्ट किया, वो ठीक है, हमारी एडवाइस थी, मगर ज़ीरो सेमेस्टर को सक्सेसफुल बनाना वो आपका काम था। एंड यू सी दैट अलोंग विद द टाइम आपका BBA का प्रोग्राम, BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवरी प्रोग्राम इज़ राइजिंग। सो दैट शोज़ के उसके पीछे जो बैठा हुआ आदमी है या उसकी टीम बैठी हुई है, दैट इज़ एक्चुअली द वर्किंग। तो मेरा ख्याल है कि Jawad Sahab, full credit to you for running the Hyderabad campus. I really appreciate you and your entire department, and we hope that when the new campus will be with us, तो आपको ज़्यादा और अच्छा आपके प्रोग्राम को एक प्रमोशन मिलेगा। And at that time, certainly, I would like to visit few times along with you when the construction would be going on, उसकी प्लानिंग के लिए। तो otherwise, आई थिंक अगर हम डेटा को कंपेयर करते हैं, एवरी टाइम वी प्रेजेंट द डेटा टू द बोर्ड ऑफ BOT मीटिंग, सो आई सी के हैदराबाद कैंपस की फिगर्स सारे कैंपस से ज़्यादा होती हैं। इवन कराची कैंपस से भी वो जो परसेंटेज होती है वो हैदराबाद की ज़्यादा होती है। एंड द क्रेडिट गोज़ टू जवाद खोसरो साहब 100%। सो जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। Sir, thank you very much from myself and my whole team who is here. And there have been times when we look forward to you for the guidance since beginning. And I'm sorry for the crocheting here. There's a regular occurrence. So I hope I'm audible there. Yes, you are fully audible. Okay. So sir, the whole team here, they look forward to your guidance, your presence here, because it enriches our environment and rather makes it very vibrant. आपका जो एक तरीक़ेकार है, even convocation पे आना या visits पे आना और faculty और सबके साथ मिलना, I think it's very unique कि आप हर किसी को अपनी approach में लेते हैं, and everybody feels comfortable with you when they are dealing with you, and especially myself, कोई ऐसा मुझे दिन या बात याद नहीं है कि जब आपको मैंने अप्रोच किया हो गाइडेंस के लिए और आपकी तरफ से गाइडेंस हमें ना हो। तो इनफैक्ट वो गाइडेंस इस तरह की होती है कि वो हमारी सक्सेस के लिए फाउंडेशन बनी। हर उसमें आपने फाउंडेशन सेमेस्टर का जिक्र किया, बट आई वुड से इन एवरीथिंग दैट वी हैव डन, बिकॉज़ आप आई हैव जॉइंड से शुरू से ही यू हैव बीन हियर टू गाइड अस।
So from our team here, everybody, we are deeply thankful to you and appreciate the support, guidance, and contribution that you have provided to us. And whatever we are here, it's basically the support, I guess, that is provided by you and the top management here, but especially academic side of Bani Cheezon में बाद में आपकी support हमारे पास रही है. So sir, inshallah, we will again looking forward to your guidance and नए campus की सामने working चल रही है. Sir, you are at the front with that. So inshallah जब वो होगा तो वो भी we would like to see you here with us in the new building. Everybody here and the larger team and more successful. So thank you for all the support from all of us here. Thank you very much, sir. Thank you, Jawad Khoso Saab. I really thankful to you and your entire team. Now it comes to Dr. Zaida. Dr. Zaida, आपको हमने 6 महीने बड़ा मिस किया था और वो अब मेरा ख्याल है अब वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए. ओके, नो अब रिपीट नहीं होगा. सो डॉक्टर जायदा हैज़ बिन वेरी वेरी हेल्पफुल एवरी टाइम. आई मीन लाड़काना कैंपस की आई थिंक जो भी एक्टिविटी हैं डॉक्टर जायदा मुझे रिपोर्ट करती रही हैं. माशाल्लाह बड़ी फेयरली रिपोर्ट करती रही हैं और स्पेशली इन द कन्वोकेशंस जो अरेंजमेंट्स जायदा करती हैं डॉक्टर जायदा. देखें, मज़ा होता है कि छोटे शहर में रिसोर्सेज कम हो, वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी चला के दिखाएं. कराची इस्लामाबाद में हैं रिसोर्सेज, मगर छोटा शहर लाड़काना जहाँ पर आपका एक कंपटीशन हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के साथ, सामने कैंपस खुला हुआ है, वो हमसे 1/3 फीस में वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन से गुजरना आई थिंक ये जायदा का कमाल है. सो डॉक्टर साहिबा, थैंकफुल टू यू. आप एक कैंपस बहुत अच्छा चला रही हैं लाड़काना का एंड होप कि इंशाल्लाह आपका जो कंप्यूटर साइंस है वो भी जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जिसकी हमें बहुत बड़ी ख्वाहिश है काफ़ी टाइम से. तो थैंकफुल डॉक्टर जायदा, आई एम थैंकफुल टू यू. सर, जस्ट फ्यू वर्ड्स. तहे दिल से शुक्रिया जो कुछ भी आज तक अपने लाड़काना कैंपस के लिए किया है. We were at 2 programs and now alhamdulillah Laड़काना campus came with 9 diverse programs and we are going to launch PhD in management sciences and education. और मुझे याद है जब मैंने कॉल किया कि सर आई विल बी प्रेजेंट दिस इन कमिंग व्यूअर्स, तो आपका जो आप जिस तरह से इनकरेज करते हैं, वो आपके वर्ड्स, वो आपका कॉन्फिडेंस इन अस, शायद वही एक पॉइंट होती है मोटिवेशन की हमारे लिए, स्पेशली स्मॉल कैंपसेस के लिए, कि हम भी उन्हीं स्टेप्स को, आपके स्टेप्स को फॉलो करते हुए और ग्रो कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ड्रीम ऑफ बीबी शरीफ मोहतरमा कि हम 0 से लेके बच्चों को एनरोल करेंगे लाड़काना कैंपस में जो कॉलेजेस में हो रहा है, और हम पीएचडी देके उनको निकालेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह लाड़काना कैंपस इज एट द मेन लेवल, और without your support and obviously without support of top management it would never be possible for especially this campus where always there are certain challenges. आपने हर चैलेंज को अपने विजडम के साथ हमें सपोर्ट किया. फॉर एन एग्जाम्पल एक जरूर मैं कोट करना चाहूँगी. When I presented MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आपने 2 दिन पहले काउंसिल से आपसे मेरी बातचीत हुई थी, तो आपने मुझे कहा कि ज़्यादा कोई बात नहीं, अगर फैकल्टी नहीं मिल पाई क्योंकि देयर इज एन अच्छी सी रिक्वायरमेंट, तो हम ऑनलाइन प्रोग्राम पे जाएंगे. और वो आपका एक रफ एक एडवाइस नोट था. और टुडे अल्हम्दुलिल्लाह दैट प्रोग्राम इज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स ऑफ सर्विस लाड़काना. यस. तो आपका विजन, आपका लीडरशिप, आपकी कमिटमेंट, आपका एंथुसियाज्म हमारे लिए मशहूर है. और मैं हमेशा आपको देखती हूँ, तभी शायद जायदा कैन बी एबल टू डू दिस ऑल. And thank you so much. I'm grateful that you are being professional and being very humble and kind person in our lives. And inshallah, look forward very positively to again work with you next 10 years, maybe 25 years, and I'm not going to go anywhere. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर जायदा, थैंक यू. आप बहरीन में होती तो कम से कम हमें बहरीन देखने का मौका मिल जाता. बट एनीवे, आई एम रियली थैंकफुल. वो तो मैं मजाक करने की मेरी आदत है, but we needed your presence and mashallah once again you have joined. So again we hope can Laड़काना graph will go up. Dr. Humayun Naeem, head of campus Dubai. बस वो हमारी इतनी अच्छी मीटिंग हुई उधर, और डॉक्टर हुमायूं नईम इज़
has built up very good relations with KHDA, because when we visited KHDA altogether a few days ago, so everybody knew Zabist. I mean, that is the credit. We are a very small university, but people are knowing Zabist. And Dr. Humayun has built a very good reputation there, and we were welcomed there. But unfortunately, we went for some, reason where we have decided, to maybe to close the campus. So we were just discussing with their chairman of KSDA. Dr. Humayun, are you there? No, कोई बात नहीं. But he is, mashallah, working very, very actively. And then other HOC, विजय कुमार, आई थिंक विजय की जो सबसे अच्छी बात है कि वो टेंशन में भी हो तो मुस्कुराते रहते हैं. ये इनकी खूबी है, लिटरली स्पीकिंग. ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक होता है कि आप स्ट्रेस में हो तो नॉर्मली बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी डिफरेंट हो जाती है. बट आई डोंट थिंक विजय ने कभी ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हो. हमेशा स्माइलिंग फेस. जब मैं स्माइलिंग फेस से मेरे ऑफिस में एंटर होते हैं तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ कि चलें यार. लेकिन वो फिर 2-3 प्रॉब्लम बताते हैं, तो फिर लेकिन वो स्माइल करते रहते हैं, मैं कुछ टेंशन में आ जाता हूँ. तो एनीवे ये इनकी कमाल है और माशाल्लाह वी आर वेरी हैप्पी. विजय, देखें मैंने आपको फ्रेंकली कहा कि ये एक बड़ा चैलेंज था, बिकॉज वी आर थिंकिंग मैनी थिंग्स कि हाउ वी प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट देयर, हाउ वी do the admission campaign there, how we will bring the students to our campus, despite के 50% subsidy दी है, but despite that students को attract करना, फिर इधर उधर जाना in so many places. And Vijay is very hard working. He has visited पता नहीं 100 of places. इंडस्ट्री में भेज रहा हूँ मैं इसको आजकल ताकि MPM का प्रोग्राम भी थोड़ा सा वहाँ पर अपलिफ्ट हो. But I think overall Vijay has done his job. So I'm thankful to Vijay, to you also. Thank you very much for your trust, for putting in your trust, because Garo was your brainchild. So thank you very much for putting your trust in handing it over to Garo campus was not the brainchild. It was a school of engineering and applied sciences. But वो कोविड की वजह से फिर उधर सिस्टम. I think I should little speak, very little, maybe 2-3 minutes. The exhibition which I just visited in Dubai, that was global education system. When you visit such place, then we come to know कि where we do stand and when the world is going on. इतनी सारी इसमें चीज़ें थी, स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी तक. उसमें वहीदा मैसर भी मुझे वहाँ आई थी, वो डॉक्टर मैडम चांसलर ने भेजा था, और दूसरी लुबना खालिद भी आई थी. लुबना खालिद के लिए इतनी चीज़ें थी, बिकॉज स्कूल्स के इतने गैजेट्स आए हैं बच्चों के कि यू नेवर थिंक. इतने गैजेट्स आए हैं, वो बच्चों के रोबोट्स बने हुए हैं और बच्चे वो ड्राइंग करते हैं, वो रोबोट भी वही ड्राइंग करता है. और वो एक आध तो मैं भी लाया हूँ उधर से. मगर रोबोट्स हैं, ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं कि बच्चे को एक क्यूब है जिसमें सारे नंबर्स हैं, वो बच्चा उससे सारे वो इतने नंबर्स के साथ सारी बेसिक अर्थमेटिक सीख जाता है. वो एक्सेलेंट. एक AI का सिस्टम देखा मैंने वहाँ अटेंडेंस का, कि जो सबके फेस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिकॉग्नाइज करा लें आप, उसके बाद सिर्फ यूँ मोबाइल करें तो पूरी क्लास की अटेंडेंस हो जाती है एक ही गो में. एक क्लिक करें, सारे जितने भी बैठे हुए हैं, इवन यू हैव पुट अप द मास, उसमें पहचान लेगा. उसने डेमो दिखाया हमें. 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, 70 की, आप सिर्फ एक मोबाइल को सरा सा यूँ कर लें, आपकी अटेंडेंस हो गई. एवरी रिकॉर्ड इज़ परफेक्टली एंटर्ड. आपको ये 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये गैजेट्स पे बात हो रही है, और दिस इज़ ऑल AI सिस्टम. तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी जब मौका मिले, आई थिंक यू शुड विजिट दोज प्लेसेस एंड यू सी दैट वेयर डू वी स्टैंड, और कितना हम उसमें से अपना हिस्सा ले सकते हैं. अभी तो मुझे बहुत मुश्किल. स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड जो है वो लेना है हमें. मैडम से मैडम मान जाएंगी, मुझे पता है. तो वो स्मार्ट बोर्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकली है. स्मार्ट बोर्ड का मतलब वाकई में स्मार्ट बोर्ड है. उसके 3 साइज़ हैं, 65 इंच, 75 इंचज़ एंड 85 इंचज़. वो आप बोर्ड पे लगाते हैं, चौक वॉक की ज़रूरत नहीं है, जो चाहे ड्राइंग करें, जो आप लिखेंगे वो स्टोर भी हो रहा होता है. और उसके बाद हाफ ऑफ द स्क्रीन को डिवाइड कर दें तो वो जो स्टूडेंट्स दूर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे नज़र आते हैं एज इफ़ दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स अ वेरी क्लैरिटी ऑफ वॉइस, वेरी क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग. And especially in engineering and medical sciences, where you have to make 3-dimensional photo diagram, so you don't need to draw it.
आपने कहीं सेव किए हुए आप क्लिक करेंगे वो आपके बोर्ड पे आ जाता है, फिर उसको आप उसको घुमा के इसको सब चीज़ें बताएं कि दिस इज़ दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज़ दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। इतना ईजी और इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट। नाउ देर इज़ नो ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड सिस्टम इज़ गोइंग ऑन, एंड सूनर और लेटर what I've heard very recently कि LUMS has ordered I think 100 plus those screens, smart boards, and they are going to place it. Ultimately फिर ZEBIS का नंबर भी आएगा, हमने भी प्लेस करना होगा in order to remain in competition. But that technology is the future, and that board is also carries the AI attributes. AI के बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं. तो I think with this I'm really thankful to once again everyone. अगर किसी का नाम रह गया है तो I'm really sorry. Everybody is dear to me. Thank you very much. We have heard from you about every department, appreciation. Certainly, it is the team that makes for a combined success. Leadership is critical and important. It's important for the leader to recognize the potential that lies everywhere. Thank you very much for your kind words. Very nice. Thank you. Very nice, very nice. He's improvement. They've done a nice job. Yeah, of yeah, bringing the definitely. clusters to yes, service contracts. Oh, this is memories. Sir, we have this smile from our Bashir ने बहुत काम किया. I want to recognize Bashir sir. Vajia is Things that he's also been doing. done a good job. Vajia, And Vajia, sorry, Vajia and the Bashir. picture selection. किसने बनाया? ये Vajia और Bashir ने. Collections are in. I will give you special prize. आपकी एक तस्वीर इनके साथ ही होनी चाहिए. Definitely. from our campus. This container message is from our Bashir अब आप आ जाइए please. Bashir and Vajia, इन्होंने ये very nice यार. सब लोग कर रहे हैं. सब लोग आ रहे हैं. एक सेकंड. इसको खोल लीजिए. ये पहले कुछ तो क्या? Thank you very much. Thank you. Now the cake. सेरेमोनियल है पर आगे जाके कटिंग करना. नहीं, 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 ये बराबर. Look at the design. That's good. Okay, now, all of us want a slice of this. Should we go outside? Okay. ये मुझे लग रहा है.